So now welcoming our second studio guest, Varusha Yagnik. Varusha, welcome to the show. She's also 26 years old, newly married. She also co-owns V Style Up and आप लोग brands को उनकी social media handles, content creation and digital image बनाने में help करते हैं. I think I have seen your work and it's pretty impressive. Fashion, photography और पता नहीं क्या क्या. So enlighten us, आप और क्या क्या करती हैं? So basically, I'm a fashion graduate. I work as a freelancer in content creation, social media handling, and my main work is fashion styling. I'm curious about photography, so I work as a photographer part-time. So Varusha, like हमने डिस्कस किया कि आप मैरिड हैं. 26 Gen Z and married काफी unheard of लगता है. मुझे तो लगता है बहुत जल्दी शादी कर लिया आपने. Because this is not what I have seen recently, and this is very important. You represent actually the more important segment of this society and youth, where your knowledge of reproduction and reproductive health and fertility के ऊपर देश क्या पूरे वर्ल्ड की फर्टिलिटी रेट निर्भर करती है. All right, so let's get started with some conversation around it, and we'll keep it with questions and answers so that it is easy to understand what you know and what you don't. So after you got married, or before that, close to your marriage, did you guys, you and your husband, take any counseling of trying to figure out the method of contraception? No, like हमने कोई counseling session या कुछ नहीं लिए. So I guess you are clear on the method of contraception, but do you think that the choice of the method of contraception can impact your fertility in future? Yes, I think it can. I don't know. So do you think you would want to know more details about it so that you don't end up choosing the wrong kinds? Well, now that we are talking about it, I think yes, मैं जानना चाहूँगी. I guess then we should take an expert opinion from a doctor on the method and the choice of contraception and the impact it might have on future fertility. सही कॉन्ट्रासेप्टिव चूज करते वक्त सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन नहीं बल्कि फ्यूचर फर्टिलिटी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को भी कंसिडर करना ज़रूरी है. एक चीज़ जो कपल्स अक्सर ओवरलुक कर देते हैं वो है STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. ये इन्फेक्शंस ज़्यादातर केसेस में बिना किसी सिम्टम्स के होते हैं लेकिन बॉडी के अंदर चुपचाप डैमेज करते हैं. सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेलोपियन ट्यूब्स पर होता है जो ब्लॉक हो सकती हैं और बाद में नेचुरली कंसीव करना मुश्किल हो सकता है. इस कंडीशन को ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं. इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन का ऐसा मेथड चूज़ करना चाहिए जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ STI से भी प्रोटेक्ट करे. बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डम्स न सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं बल्कि STI से भी सेफगार्ड करते हैं. इसी वजह से बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. लेकिन अगर कपल्स और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लो डोज थर्ड जनरेशन OCPs यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी एक सेफ ऑप्शन है. इनमें हार्मोन्स का डोज कम होने की वजह से ये काफ़ी सेफ होते हैं और पिल स्टॉप करने के बाद आप इमीडिएटली प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं. But OCPs will not save you from sexually transmitted infection या STIs. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. एक और ज़रूरी बात, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसे लोग आई पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल कहते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसीज के लिए रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स होते हैं. So my question specifically to you would be if a couple in their late 20s probably, if they want to start a family, then after how many months of trying on their own should they consult a doctor? I think 8-9 months try करने के बाद they should consult the doctor. That's true. By definition of infertility, under 1 year usually people get pregnant, but if you are unable to conceive even after 1 year of trying at this age, then you should definitely consult a doctor. And again, this time frame reduces when you try at a later age. So the time frame is not constant for a couple who is in early 20s versus somebody in early 30s. So if you are in early 30s, probably even after 5-6 months of trying,
you should consult a doctor so that it's not too late to start the treatment. So क्योंकि आप recently अभी आपकी शादी हुई है and you guys definitely are not planning to have kids anytime in near future. So आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में जब किड्स चाहिए हो, now that you know कि कब डिक्लाइन होता है and all that. So when is the age when you should start thinking about having children in case you want to have children? Around 28 I think सही एज होगी कि चिल्ड्रन चाहिए या नहीं प्लान. So are you aware of tests, simple tests that can be taken to assess the fertility of, you know, a basic test to assess fertility of a female and a male? Are you aware of any such tests? I think there are tests जिसमें like फीमेल में एग्स की क्वालिटी पता चलती है कि वो अच्छे हैं या नहीं, एंड सेम विद मेल्स कि उनका जो स्पर्म है वो लाइक उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी कैसी. बट आई डोंट नो कि लाइक टेस्ट को बोलते क्या है या वो कैसे होते हैं. ओके, सो बहुत ही बेसिक टेस्ट होती हैं, लाइक फॉर अ फीमेल एन अल्ट्रासाउंड. उससे पता चल जाता है कि क्वालिटी तो नहीं बट एटलीस्ट क्वांटिटी के बारे में आप थोड़ी बहुत असेसमेंट कर सकते हो. एक ब्लड टेस्ट होती है AMH की. इन दोनों अल्ट्रासाउंड एंड AMH दोनों मिला के आप बेटर असेसमेंट दे सकते हो कि व्हाट इज द ओवेरियन रिजर्व, यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ एग्स एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और क्या आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो ये दोनों टेस्ट बहुत सिंपल होती है. और मेन के लिए इट इज इवन सिंपलर. दे जस्ट हैव टू अंडरगो अ सीमेन एनालिसिस जिससे कॉन्सेंट्रेशन काउंट, यू नो, स्पर्म की हेल्थ के बारे में, उनकी मोटिलिटी और उनके जनरल क्वालिटी के बारे में पता चलता है. So would you know by any chance where to go and get this kind of a test done? आई गेस किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में आप सोनोग्राफी वगैरह करा सकते हैं. वेल ट्रू, आप डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी तो करा सकते हैं, बट वो आपको पूछेंगे कि कौन सी सोनोग्राफी क्या, जिसका प्रॉबेबली आपको नॉलेज नहीं होगा, बिकॉज देयर आर काइंड्स, मल्टीपल काइंड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड. So I think it makes sense to, you know, visit a fertility clinic where if you just go and say कि आपको एक fertility assessment कराना है. So usually most of the top end clinics will have packages around it, and वहाँ simple आपका एक ultrasound हो जाएगा जिससे आपका थोड़ा बहुत यूट्रस के बारे में, ओवरीज एंड फॉलिकल काउंट वगैरह बोलते हैं वो, एक आध ब्लड टेस्ट एंड सीमेन एनालिसिस जो भी सेम फर्टिलिटी क्लिनिक में हुआ. इनफैक्ट फर्टिलिटी क्लिनिक में कराने का सीमेन एनालिसिस फायदा ये मिलेगा, फर्स्ट दे विल हैव अ सेपरेट क्लीन रूम फॉर यू नो प्रोवाइडिंग अ सीमेन सैंपल. यूजुअली जो पैथोलॉजी लैब में बिल्कुल ठीक नहीं होता है कईयों में. एंड सेकेंडली उसमें क्योंकि they deal with this kind of, you know, semen analysis and special tests around it, they have better microscopes and they have more trained staff who just deal with sperms and eggs. So it kind of makes sense to get the fertility assessment done from any fertility clinic of your choice. How much do you think would simple fertility assessment, you know, the sonography and semen analysis, how much do you think that would cost? Around 5,000. Pretty close, yeah. I think under it. So have you heard the term IVF? आप IVF कभी सुना है आपने? हाँ, IVF आई थिंक अब थोड़ा कॉमन वर्ड हो गया है, तो आई नो व्हाट इज IVF. तो जो मुझे पता है कि बेसिकली जब कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है तो IVF एक ट्रीटमेंट है जिससे आप एग्स फ्रीज करके आप फ्यूचर में बेबी कर. जब किसी फीमेल को या मेल को कोई भी पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकता है, इफ यू आर अनेबल टू कंसीव, तो आप बॉडी से बाहर एग्स को निकाल देते हैं. फिर जो सीमेन सैंपल है उसमें से स्पर्म्स निकाल के आप फर्टिलाइज करके बॉडी से बाहर एम्ब्रियो बनाते हैं एंड देन यू ट्रांसफर इट बैक टू द फीमेल. सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये IVF है. और इसका एग फ्रीजिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, बट येस ART क्लिनिक या IVF क्लिनिक्स जो होती हैं वहीं पे सेम यही प्रोसेस जिसमें यू हैव टू प्रिपेयर द ओवरीज टू, यू नो, मेक मल्टीपल एग्स, वो प्रोसेस के बाद एग रिट्रीव करने का प्रोसेस भी सेम होता है, बट
इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन एम्ब्रियो आप फिर उस एग को फ्रीज कर देते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकें। सो डू यू नो एक आईवीएफ ट्रीटमेंट में अंदाजन कितना खर्चा होता होगा? कोई बॉलपार्क फिगर है आपके दिमाग में? आई थिंक एक्सपेंसिव होता है। आई थिंक 80K से 1 लाख के बीच में। 80K to 1 लाख तो थोड़ा सा अंडर बोल दिया आपने। यस, इट्स एन एक्सपेंसिव, बट एक्सपेंस इज अगेन सब्जेक्टिव. So considering the fact that you are going to get a baby out of it, the expense could be anywhere close to 1.5 to 2 lakhs, depending again whether you are doing it in a tier 1 city, tier 2 city. So it's that cost. एक कोई सिंगर है जिनके मदर आई थिंक अर्ली 60s में होंगे एंड उन्हें बेबी हुआ है आई थिंक IVF के थ्रू, तो वो कैसे पॉसिबल? Well, like I explained, वैसे तो ovaries age faster than the uterus, so it's possible to high risk pregnancies होती हैं, आप मॉनिटर करके कर सकते हैं, but first of all the law says, लॉ में लिमिट दिया गया है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ आफ्टर 50 यू कैन नॉट सीक द IVF ट्रीटमेंट, बट कई जगह पे दूसरी कंट्रीज में जाके लोग करा के आते हैं. तो इस केस में डोनर एग्स का यूज करते हैं बिकॉज नेचुरली द फीमेल हैज लॉस्ट ऑल हर एग्स बिकॉज शी इज मेनोपॉजल बाय दैट एज. बट टेक्निकली आप अगर एग डोनर लेते हो तो आप फिर एग डोनर के थ्रू फिर एम्ब्रियो फॉर्म करके इवन लेट 50s या अर्ली 60s में कंसीव इन द सेंस प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो. बट हमारा लॉ इसको लिमिट करता है इंडिया में, तो कई बार लोग बाहर जाके ये सब करा के आते हैं. दे डू द IVF bit in some other country and then they carry forward with the pregnancy here. क्योंकि हमने लॉ की बात की तो मुझे ये भी पूछना था कि अगर कोई सिंगल वुमन है या कोई सिंगल मैन है तो अगर उन्हें IVF के थ्रू या बेबी चाहिए हो तो कैसे हो सकता है? वेल, द लॉ ART लॉ कहते हैं, उसके अनुसार a single woman can of course opt for an IVF treatment. So as long as she fits the age criteria, which is 23 years to 50 years, then she can opt for an IVF treatment. But unfortunately, single man cannot as per the Indian law. Currently, इसके ऊपर बहुत सारे cases वगैरह चल रहे हैं. People think it's very wrong to, it's a bias. But law is what law is. You can't do anything about it. So if a married couple who just recently got married and they want to delay having a child, like वो चाहते हैं कि late 30s से पहले वो सोचना भी नहीं चाहते इस बारे में, तो क्या उनके पास भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के सिमिलर ऑप्शंस हैं या उनके ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं? क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक सिमिलर ऑप्शंस ही होंगे क्योंकि जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है, चाहे लाइक मैरिड कपल हो या कोई अनमैरिड फीमेल हो जिसको करना हो. Well, the only difference here would be if you are unmarried, then you are going to freeze your eggs. But if you are a married couple, then you have an option of freezing an embryo. Right, so you go through the IVF process in your late 20s whenever you think is your right time, and then you make an embryo out of it and then freeze the embryo for later use. इसमें फ़ायदा ये होता है कि according to जो process and procedure होता है उसमें the survival rate of an embryo is much better than the survival rate of an oocyte or an egg. So it makes more sense to freeze the embryo in case the couple is married as compared to just freezing the egg. So it was nice talking to you and I think clarity थोड़ी है, बहुत नहीं है, but एकदम नहीं है ऐसा भी नहीं है. And I hope तुम्हें भी कुछ सीखने या समझने को मिला. Is there something you would want to add as a concluding remark? I'm glad to be here and like मुझे इस बारे में इतना बात करने को मिला और मुझे काफ़ी न्यू चीज़ें भी पता चली and I think अब मैं इस टॉपिक पे थोड़ा और comfortably बात कर पाऊँगी दूसरों से भी. So thank you.